In this lecture, we will discuss Baylis-Hillman reaction. This is the general overview of this reaction. यहाँ पे R1 R2 X है और यहाँ पे आपके पास है डबल बॉन्ड EWG. EWG means electron withdrawing group attached to this alkene, and this is the catalytic tertiary amine as a reagent, and this is the product formed. Okay. और इस रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं, और वो कुछ खास बातें ये हैं कि ये जो रिएक्शन है ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन है. कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये. ठीक है. और दूसरी बात कि यहाँ जो हम X ले रहे हैं, X, ये जो आपका X है, हियर X equal to O. O means oxygen. Okay, it means this is a carbonyl compound. This is a carbonyl. This is a carbonyl. C double bond O. Here we can take X equal to O. Only O. ठीक है. और यहाँ पे this is the EWG. EWG means electron withdrawing group. Electron withdrawing group. So here we take EWG equal to like CO2R, COR, CN, SO2R, SO3R, POOET का whole 2 and CONR2, CH2 double bond CHCO2M. These are all the electron withdrawing group, right? We are, and the most common you have heard that aldehyde, ketones, cyanides. These are all the electron withdrawing group. But here you can take any withdrawing groups, any electron withdrawing groups at this position, at this EWG group, right? CO2R, COR, CN, SO2R, SO3R, POOET का whole 2, CONR2, CH2 double bond CHCO2 Me, right? तो ये हो गया. और दूसरा चीज़, यहाँ जो हमने जो कैटालिटिक टर्सरी अमीन लिया है, कैटालिटिक का मतलब ये है कि ये जो हम ले रहे हैं रीजेंट टर्सरी अमीन, ये आपका रिएक्शन के लास्ट में जाके फिर से हमें रिकवर्ड हो जाएगा. ठीक है. मतलब कि स्टार्टिंग में भी टर्सरी अमीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, बट लास्ट में जो हमारे जो मिलेगी प्रोडक्ट, उसमें आपका फिर से जो हमारा टर्सरी अमीन है, क्योंकि यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, सो ये आपका फिर से जब बनेगा प्रोडक्ट तो उस टाइम पे ये रिकवर्ड हो जाएगा. रिकवर्ड, राइट? बिकॉज इट्स अ कैटलिस्ट. वी टेक हियर एज अ कैटालिटिक. ओके. सो ये था. और यहाँ पे टर्सरी अमीन में हम क्या क्या ले सकते हैं, सो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं. सो लेट मी मेक सम स्पेस हियर. यहाँ पे कैटालिटिक टर्सरी अमीन में हम क्या क्या ले सकते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, है ना. तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है. तो ये जो हमारा है कैटालिटिक टर्सरी अमीन, सो वी कैन टेक हियर वन द फेमस वन इज डैबको. और डैबको का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है. This one, this is the DABCO, DABCO, right? And another tertiary amine we can take in this reaction as a catalyst. You can take this one, N, and या एक मिनट,
this one, and we can take something like this. Right. Yeah. So these are the three catalytic tertiary amines we can take in this reaction. और इसका जो नाम है, तो इसका नाम हो गया डैबको, और इसका जो नाम है ये सेकेंड वाले का, इसका कुछ नाम है क्यूनो न्यूक्लियोडीन, न्यूक्लिडीन, right? Nucleodine, right? And this one is, and the last tertiary amine name is indologene, right? This is the indologene, this one is the indologene, and this is called quinonucleodine, and this is the famous one is the Dabco, and the Dabco full form is where I can write here. Let me make some space here. Okay, and the full form of Dabco is DABCO. The Dabco full form is diaza 1,4 diaza bicyclo 2,2,2 octane. This is the full form of Dabco 1,4,2,1,4 diaza bicyclo 2,2,2 octane, right? So I think you have this is enough general overview of this reaction. So यहाँ पे आप X equal to O लेना है, ठीक है, C double bond O, and here is the electron withdrawing group. You can take any electron withdrawing group as per your wish. I have also given here examples of all the electron withdrawing group, and here is a catalytic tertiary amine. You can take among these three like Dabco and quinonucleodine, and the last one is the indologene, right? These are the three catalytic tertiary amines, and you get a product. This product forms, but इसका mechanism क्या होगा वो हम अभी देखेंगे. So now let's start the mechanism of this reaction. So I am taking a new examples here so that you understand clearly. Okay, so now let's start the mechanism of Baylis-Hillman reaction. Okay, so the example is I am taking here pH double bond O H plus, this one, and here Dabco means I am taking this one, right? I am taking this one. एक सेकेंड मैं इसको फिर से कर देता हूँ ऐसे. Now I erase this, and here N, right? So this is the Dabco, and we have a product here, right? तो यहाँ पे आपके पास ये आपका रिएक्टेंट है, ये भी आपका रिएक्टेंट है, एंड दिस इज द रिएजेंट वी टेकन हियर एज अ Dabco. तो पहली बात तो आपके मन में, और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर. ओके, तो इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी नो दैट
organic chemistry, acid base reaction first happen. Acid base reaction first happen, right? So और एसिड बेस रिएक्शन के लिए होने के लिए आपका मतलब कि अच्छा बेस का होना ज़रूरी है। बेस का अच्छा होना ज़रूरी है, राइट? तो आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे जो डैम्को है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो क्या ये बेस का काम करेगा? क्या बेस का काम करेगा? क्या ये बेस का काम करेगा डैम्को, या फिर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि डैम्को की पीकेज होती है, पीके ये बहुत कम होती है। पीके वैल्यू इज़ वेरी लो। जब पीके कम होगी तो क्या होगा? लेस बेसिक होगा। जब पीके कम होगा तो क्या हो जाएगा? लेस बेसिक होगा। और जब लेस बेसिक होगा इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, मोर गुड न्यूक्लियोफाइल, मोर गुड न्यूक्लियोफाइल, राइट? सो डैम्को क्या है? डैम्को का पीके वैल्यू रिलेटिवली लो होता है बहुत, ठीक है? जब पीके वैल्यू लो इट मीन्स इट इज़ अ लेस बेसिक, और जब होगा लेस बेसिक इसका मतलब क्या? कि इट विल बी अ मोर गुड न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इसका पीके लो क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन है और इसके बगल में एक और नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये तो दे देगा लोन पेयर, ठीक है? मान लेते हैं कि इस वाला जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका बाहर से प्रोटॉन लेना चाह रहा है, लेकिन इसके जो इसी मॉलिक्यूल में एक और नाइट्रोजन है पास में ही है, ये आपका क्या करेगा? ये आपका माइनस आई लगा करके, माइनस आई इफेक्ट लगा करके इसको, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपने पास खींचेगा। और जब खींचेगा तो इसका जो लोन पेयर है इस वाले नाइट्रोजन का, ये आपका फिर बाहर जो है एसिड बेस रिएक्शन जो है शो नहीं करेगा, एंड दैट्स वाई दिस पीके वैल्यू इज लो फॉर द डैम्को, राइट? तो इसीलिए डैम्को का जो हमारा पीके वैल्यू होता है वो हमारा लो होता है, क्योंकि ये हमारा अच्छा बेस की तरह काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि इसके पास इसी डैम्को में दो नाइट्रोजन है हमारे पास, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो आपका माइनस आई लगा करके इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को, उसको प्रोटॉन जो है ईजिली बाहर जाके नहीं ले सकता है, ठीक है? इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आपका बाहर जाके प्रोटॉन नहीं ले सकता है, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल में एक और हमारा नाइट्रोजन है जो कि लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट, इसे खींच रहा है। इसकी इस वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरा नाइट्रोजन इसके खींच रहा है, दैट्स वाई इट डजंट शोज एसिड बेस रिएक्शन हियर, इट विल वर्क एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, राइट? ओके, तो ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या? तो मैं इसको करता हूँ इरेज, और फिर आपको मैं बताता हूँ इसके बाद क्या होगा। राइट, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा डैम्को है, जो हमारा डैम्को है, एक सेकेंड, जो हमारा डैम्को है कि ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा, ठीक है? मैंने इसका आपको बता दिया रीज़न भी। रीज़न क्या था? लो पीके वैल्यू। लो पीके वैल्यू क्यों? क्योंकि इसी मॉलिक्यूल में एक और नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड ही इज अप्लाइंग माइनस आई इफेक्ट, एंड दैट्स वाई
दिस नाइट्रोजन कांट टेक प्रोटॉन इजली, राइट। सो इसीलिए ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन नहीं करता है और ये आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो बात ये है अब कि ये जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा अटैक कि यहाँ करेगा अटैक कि यहाँ करेगा अटैक, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटी दिखा दूंगा करके कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट कि ये जो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये फिर थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन यहीं पे क्यों हुआ, अगर मैं तीनों पॉसिबिलिटी को लेके चलूं और मैं आपको समझाऊं तो देन दिस विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। You have a right to know that why this reaction is not occur at this position, why this occur at this position only, right? So I am telling you all the possibilities of this reaction, and what is the correct pathway of this reaction I will tell you, okay, and why this is the correct pathway I will also tell you, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, इसको मैं अंडो करता हूँ क्योंकि ठीक है। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ कि मान लिया कि मैंने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहाँ से अटैक करा दिया इस सी डबल बॉन्ड ओपोजिशन पे। क्यों कराया सी डबल बॉन्ड ओपोजिशन पे? क्योंकि ड्यू टू electronegative difference of this oxygen and this carbon, here is a delta positive charge generated and here is a delta minus charge generated, and that's why this carbon is act as a electrophilic center, right? So इसीलिए मैंने सोचा कि इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये आपका यहाँ पे अटैक कर सकता है, इस वाले सेंटर पे अटैक कर सकता है। जब मैंने अटैक करा दिया तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया पीएच। जब होगा इस पे अटैक ये बॉन्ड होगा शिफ्ट, सो वी गॉट O माइनस हियर एंड दिस इज द H एंड हियर इज समथिंग लाइक दिस नाइट्रोजन। वेट एक सेकेंड, मैं पहले यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे नाइट्रोजन और यहाँ से आपका ये जो आपका बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड जो है आपका ऐसे जाकर के अटैच्ड हुआ है और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये हमारा ऐसे हुआ। जब ऐसे हुआ है तो अब इसके बाद क्या होगा? तो अगर आप जो मेरा O माइनस में चार्ज जब आ गया है तो अब ये करेगा कम बैक। अब कम बैक करके क्या करेगा? पीएच तो लिविंग ग्रुप है नहीं, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप है नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? लेकिन इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये चाहता है कि हम स्टेबलाइज हो जाए, और स्टेबलाइज होने के लिए क्या करे, और ये आपका स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा? ये अब आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कोई भी स्पीसीज चाहता है कि हम चार्ज ना रहें, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, और ये चाहेगा कि यहाँ से निकल करके हम यहाँ से पूरा ग्रुप जो है अपने आप को बाहर निकालना चाहेगा और ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। एंड दैट्स वाई when the O minus charge will come back then this bond will break, और यहाँ से आपका डैम को फिर से आपका वही बन जाएगा, फिर से रिएक्शन जो है आपकी रिवर्सिबल हो जाएगी, फिर से आपका वही मिल जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये जो आपका नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ये आपका इस वाले कार्बोनिल पे अटैक नहीं करेगा। दिस इज रॉन्ग मैकेनिज्म, राइट। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आपका रिएक्शन जो है आपका रिवर्सिबल हो जा रहा है, फिर से हमें वही चीज़ देखने को मिल जाएगा। और जबकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन जो कराते हैं ताकि हमें कुछ मिले, ठीक है। ये नहीं कि मैं रिएक्शन करा रहा हूँ फिर से हमें वही चीज़ मिल जा रही है, पीछे वाला ही मिल जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म इज इनकरेक्ट, दिस पाथवे इज इनकरेक्ट, दिस पाथवे इज रॉन्ग। एंड नाउ वी चेक द
another possibilities of attack, whether he attack on this position, whether he attack on this position. ओके, अब क्या होगा? तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि इस वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है आपका यहाँ पे क्यों नहीं अटैक किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जा रही है. नाउ वी चेक द अनदर पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिएक्शन. Just wait, I am erasing all the things undo. ओके, तो मान लेते हैं कि अब मेरे पास, मैं इसको पूरा इरेज ही कर देता हूँ, राइट. और अब मेरे पास कुछ ऐसा था, यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, राइट, हाइड्रोजन था. और प्लस में यहाँ पे आपके पास इस डबल बॉन्ड से आपके पास यहाँ पे अटैच था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और हमने यहाँ पे लिया था कीटोन को एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और यहाँ पे मेरे पास था डैबको, राइट. तो इस वाले जो मेरा डैबको है, यहाँ तो मैंने चेक कर लिया, कि यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता है, ठीक है. तो अब मैं करा के देख रहा हूँ, यहाँ पे करा के देख रहा हूँ अटैक, राइट. तो जब ये करेगा अटैक यहाँ पे, क्या होगा? बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा O-, एंड नियर दिस वन यहाँ पे नाइट्रोजन, एंड इन पॉजिटिव चार्ज. एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे, एंड दिस वन पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4, या. सो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. फिर से आपका वही खेल हो जाएगा. फिर से क्या होगा? ये आपका नीचे आकर के क्या होगा? नीचे आकर के फिर से इसको बाहर निकाल देगा, और फिर से क्या मिल जाएगा हमें? प्रोडक्ट. फिर से प्रोडक्ट हमें वही मिल जाएगा. फिर से आपका रिएक्शन जो है फिर से हमारा रिवर्सिबल हो जाएगा. फिर से जो हमारी रिएक्शन है फिर से हमारी वही मिल जाएगी. तो अब द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या करता है? तो जो हमारा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो हम ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है आपका, लेट मी मेक इरेज दिस, या. तो अब आपके पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो अटैक ये यहाँ पे कर दे, इस डबल बॉन्ड, इस कॉन्जुगेट एडिशन करे, राइट. यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन करे. अगर कॉन्जुगेट एडिशन, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर ये यहाँ पे अटैक करता है, सॉरी, अगर ये अटैक यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैक. 1-2 attack, right? Because here this is one position, this is two position, and that's why it's called a 1-2 attack. But this is unfavorable because reaction is reversible. So we go through the another possibilities. और ये आपका, और ये जो है आपका यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, राइट. या इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन, बिकॉज 1 2 3 4 पोजिशन में यहाँ पे एडिशन हो रहा है, राइट. 1 2 3 4 फोर्थ पोजिशन में एडिशन हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड से दिस 1-4 एडिशन एंड इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेट एडिशन. और जब ये अटैक हुआ यहाँ पे, राइट, इस वाले डबल बॉन्ड पे, ये बॉन्ड होगा शिफ्ट और ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये फिर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट. ओके. और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास. यहाँ पे डबल बॉन्ड, हियर इज़ अ O- एंड हियर इज़ अ O-, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज, राइट. ओके. सो ये हो गया हमारे पास ऐसे. अब क्या होगा? और अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, जो आपका जो दूसरा जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है
रिएक्टेंट भी आपका यहाँ पे अभी अवेलेबल है, राइट। तो जब आपका O माइनस से चार्ज जब करेगा कम बैक, and then this double bond will attack on this position, this C double bond O position, and this O minus will go upward, and this is called aldol reaction. This is called aldol reaction, right? This is a aldol reaction. Let me write it clearly, okay? This step is aldol reaction, right? So this O minus charge will come back, and then this double bond shift and attack on this C double bond O, because due to electronegative difference of this oxygen and this carbon, here is a delta positive charge on this carbon, and the oxygen is this delta minus charge, right? And that's why ये आपका अटैक जो है यहाँ पे होगा। फिर क्या होगा, तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका ऐसे, राइट। तो अब क्या होगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया कुछ है, एक सेकेंड मैं कुछ बोल सकता हूँ, या तो अब क्या होगा, एक्चुअली किसी का फ़ोन आ गया था अभी, सो आई पुट डाउन ऑन द साइलेंट, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ये कुछ ऐसा बन गया था, और यहाँ से आपके डबल बॉन्ड एंड दिस वन लाइक हियर इज अ एन, हियर इज अ एन, राइट, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये आपका ऐसे, और यहाँ से आपके पास अटैक हो गया था O माइनस, एंड हियर इज़ अ pH एंड हियर इज़ अ हाइड्रोजन, राइट। एंड नाउ वी हैव हियर इज़ अ हाइड्रोजन, राइट, एंड दिस हाइड्रोजन इज़ अ एसिडिक, this hydrogen is a acidic proton, right? That's why this O minus will abstract this proton, this hydrogen, and then we got something like this. Let me erase this. Then we got something like this, pH, here is the OH, and here is double bond O, negative charge, N, oh shit, wait, yeah, here is a positive charge. And now what happened, because now this step is a proton abstraction, right? Because here is a O minus will take proton of this hydrogen, because this hydrogen is the most acidic proton, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका करेगा delocalize, and this one get this one, and what happen again, अब क्या होगा कि let me make some space here, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, नहीं, ठीक है। तो ये आपका कर गया delocalize, और जब करेगा delocalize तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं यहाँ पे इरेज, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया, ओके। सो अब क्या होगा कि ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, pH, OH, ये डबल बॉन्ड, here is the O minus, right, and this one is a N, एक सेकेंड, here is a N, positive charge,
Now what happened? This O minus will come back, and this step, see clearly, okay, with focus. What happened now next? This O minus will come back, and then this, and then this leave. And this is called even CB elimination. Even CB elimination. Elimination conjugation. Right? Elimination conjugation. Because this group, this Dabco, is live by the help of elimination, conjugate elimination. Right? And that's why this step is called even CB elimination process. A step. Right? So अब इसके बाद क्या होगा? तो अब इसके बाद, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो हम डैब को लेते हैं ये आपका कैटलिस्ट की तरह लेते हैं, और जो हमारा कैटलिस्ट होता है ये आपका लास्ट में जाकर के रिकवर्ड हो ही जाता है. ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसा बन गया. एक सेकेंड, ये आपका कुछ ऐसे हो गया PHOH, and this one double bond O, and this one double bond, right? और यहाँ पे आपके पास डैबको जो है आपका फिर से यहाँ पे आपके पास वापस आ गया है. राइट, दिस इज द डैबको, और ये हमारा अब रिकवर्ड हो गया है. मतलब कि स्टार्टिंग में इसने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, बट क्योंकि ये हमारा कैटलिस्ट है, एज ए कैटलिस्ट इसको हमने लिया था, दैट्स वाई वी कॉल से दिस कैटलिटिक टर्सरी अमीन्स. राइट, और इसीलिए क्या हुआ, ये आपका जब बना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, और ये आपका अब रिकवर्ड हो गया है. क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना, ये आपका रिएक्शन के लास्ट में आपका ये ओरिजिनल फॉर्म में आपका आ जाएगा. मतलब कि जैसे हमने लिया था वैसे ही आपके पास आ जाएगा. और अब आपको देखने से यहाँ पे पता भी चल रहा होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन कॉन्जुगेशन होकर के ये जो पूरी ग्रुप है ये आपका लीव कर गया. और जब ये लीव कर गया तो ये आपका रिकवर्ड हो गया एज अ कैटलिस्ट अगेन. एंड दिस इज एंड हियर इज ऐसे. राइट, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, सॉरी मैं भूल गया था वो. ठीक है, वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. और यही था मेरा फाइनल प्रोडक्ट दिस रिएक्शन का, बेस हिलमन रिएक्शन का. ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट. राइट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बेलिस हिलमन रिएक्शन. ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय. सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन. बाय. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.